खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमरुद्दीन मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी लाड़काना को नाकाम करने के लिए मुकामी पुलिस ने चोरों डाकुओं को शहर में दाखिला की खुली छूट दे दी। आए दिन डकैती की वारदातें और कारें चोरी होती रहती हैं, लेकिन आज शहर के थाना दड़ी की हदूद हमद मोहल्ला से 2 कार चोर इस वक्त पकड़े गए जब वो एसएसपी के भाई की कार चोरी कर रहे थे कि अहले मोहल्ला ने पकड़ लिया। तो माजिद जुनेजो ने पुलिस को इतला दी। पुलिस पहुंच गई है और चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल कर दिया गया है। दड़ी थाने की पुलिस ने राब्ता करने पर बताया कि 2 चोरों ने एसएसपी तौहीद रहमान मेमन के भाई आफ्ताब अहमद मेमन के बंगले के सामने खड़ी करोला कार को खोलने की कोशिश की तो अहले इलाका ने देखा और माजिद जुनेजो ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने पहुंचकर दोनों चोरों को गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल कर दिया। मजीद तफ्तीश जारी है। वाज़ेह रहे कि लाड़काना में बदअमनी की वजह से शहरी खौफ में मुब्तला हैं। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। केपीके के ब्यूरो चीफ शाहिद जमाल सिद्दीकी के मुताबिक WSSP वर्कर का 30 तारीख को एहतजाज होने के हवाले से इजलास के बाद चेयरमैन रियाज खान इस वक्त ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। چا چې ښې مشورې ورکړې د هغې شکریه ادا کوم. نننی میټینګ د پیر د ورځې 30 اکتوبر حوالې سره دی. نو په 30 تاریخ باندې مونږ اعلان کړی چې کله مونږ حکومت ته نوټس ورکولو نو مونږ په هغې کې دا لیکلي وو چې یاره مونږ پهله احتجاج به د میر دفتر کې کوو، دویم احتجاج به مونږ د WSSP هیډ آفیس مخې ته کوو. نو په 30 تاریخ باندې به انشاءالله هیډ آفیس مخې ته ښه بھرپور درنه به ورکوو او تر د هغه وخته پورې به هلته ناست یو چې څه رزلټ یې نه راوتی. نو ټولو ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړئ 10 بجو پورې چې په هره طریقې که موټر سایکل باندې راځئ که سوزکو کې راځئ خو 10 بجو پورې به ہیڈ آفس مخې ته ځان را رسوئ. آج ہمارے عہدیداروں کا اور ہر برانچ کے انچارجوں کا اجلاس تھا. اجلاس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ 30 تاریخ کو بروز پیر 10 بجے ہیڈ آفس حیات آباد WSSP کے ہیڈ آفس حیات آباد کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا جائے گا. احتجاجی دھرنا اس حوالے سے دیا جائے گا کہ تنخواہ نہیں ہے، سیکرٹری فائنانس صاحب فائل پر دستخط نہیں کر رہے ہیں اور آنے وقت میں تنخواہ کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے بقایا جات جو WSSP کے ذمہ بقایا ہیں وہ بھی ادا کرنے سے وہ قاصر ہیں اور دن بدن اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے احتجاجی دھرنا دیا جائے گا کہ تمام بقایا جات بمائے تنخواہ ادا کی جائے ورنہ اس کے بعد ہم میونسپل سروسز بند کریں گے پورے پشاور میں، جس سے عوام کو تکلیف ہوگی. تو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ پوری طور پر اس پہ نوٹس دیں اور ہمیں ہمارے بقایا جات بمائے تنخواہ کے ساتھ یہ کم تاریخ کریں. سٹی انتظامیہ سے، چیف سیکرٹری سے، چیف سیکرٹری KPK، سیکرٹری فائنانس اور فائنانس منسٹر سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ دوبارہ 2 تاریخ سے پہلے اس یونین کے مشران کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں تاکہ ہڑتال کا نوبت پیدا نہ ہو. اگر یونین ہڑتال پرچے کی گئی تو اس کا تکلیف سارے پشاور کے عوام کو ہوگا، جس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ انتظامیہ پر ہوگی. ڈھرکی سے خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق ڈھرکی کے مہانہ پول پر پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ. ایک ڈاکو زخمی حالت میں اسلحہ سمیت گرفتار. خفیہ اطلاع پر پولیس کی کارروائی. 4 نامعلوم افراد واردات کے ارادے سے کھڑے تھے. پولیس پہنچی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی. پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی. پولیس اور ملزمان میں 2 طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم کو زخمی حالت میں 1 پسٹل اور 3 گولیوں سمیت گرفتار کر لیا. پولیس گرفتار ملزم کی شناخت علی نواز ماچھی کے نام سے کی گئی. ملزم پنجاب کے علاقے کوٹ سبزل کا رہائشی ہے، جبکہ 3 ملزمان حبیب کوری اور 2 نامعلوم ہو گئے. پولیس فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری. زخمی حالت میں گرفتار ملزم کو طبی امداد کے لیے ڈھرکی کی سول اسپتال منتقل کر دیا گیا.
सखर पुलिस शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल में मुलव्वस मुकदमे में नामजद 3 मज़ीद मुल्ज़मान को हथियारों समेत गिरफ्तार करने में कामयाब। सखर पुलिस के मुताबिक कच्चे में SSP सखर इरफान अली समू की निगरानी में जारी ऑपरेशन के दौरान अहम पेशरफ्त हुई, जिसमें एडवांस इंटेलिजेंस कलेक्शन की बुनियाद पर शेर मोहम्मद शेख, मोहम्मद रमज़ान शेख और बशीर महर को गिरफ्तार करके असला बरामद किया गया है। SSP सखर इरफान अली समू ने रोज़नामा जागो अवाम से बात करते हुए बताया है कि सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल का मंसूबा शेर मोहम्मद शेख के घर में बनाया गया। इस दौरान शेरो महर और दीगर मुल्ज़मान का घर में आना जाना था और मोहम्मद रमज़ान शेख मुलजिम के साथ मिलकर जान मोहम्मद के घर, ऑफिस और दीगर मकामात पर रैकी करते रहे। वारदात के बाद बशीर महर ने मुल्ज़मान को पनाह दी और कच्चे में असले समेत महफूज मुकाम फराहम करने के साथ तमाम तर सहूलियात फराहम करता रहा। इस मद में गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ तमाचानी थाने में मज़ीद 4 मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार सहूलतकारों को CTD के हवाले कर दिया गया, जहाँ से मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया जाएगा। SSP सखर इरफान अली समू ने मज़ीद बताया कि शहीद जान मोहम्मद महर के मरकजी कातलों के करीब पहुँच चुके हैं, जल्द ही इन्हें गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। और से महर मुर्तज़ा बरियार की रिपोर्ट के मुताबिक थाना वार्ड बटन पुलिस की ज़ैनब ज़्यादती केस में अहम पेशरफ्त। 13 साला लड़की से ज़्यादती करने वाला मरकजी मुलजिम काशिफ गिरफ्तार। पुलिस 3 रोज़ कबल मुलजिम काशिफ ज़ैनब से ज़्यादती करके फ़रार हो गया था। DPO साइद अजीज़ ने ज़्यादती के वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। पुलिस टीम ने मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारत से गिरफ्तार किया। पुलिस मुकदमा में नामजद मुलजिमा सोबिया को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। DPO की SHO मोहम्मद अली चधड़ और हमराही टीम को शाबाश। मुकदमा की मुनसफाना तफ्तीश मुकम्मल करके इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। DPO साइद अजीज़ मुलजमान को कानून के मुताबिक कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं कराची से। शहर कराची थाना एयरपोर्ट की हदूद मॉडल कॉलोनी में रोजीना उर्फ शाह बीबी नामी एक पीरनी ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी। अपने ही मरीद और ड्राइवर सिंगार अली चांडियो और इसकी बेटियों पर रोजीना बीबी का पाला हुआ गुंडा लैंड ग्रेबर सालार ब्रोही से मिलकर रोजीना बीबी, सिंगार अली चांडियो और इसकी बेटियों पर तशद्दुद करके झूठी FIR करा दी। सिंगार चांडियो की बेटी शनीला का कहना था कि पिछले 7 साल से मेरे वालिद सिंगार बीबी रोजीना के पास ड्राइविंग करते थे। मेरे वालिद साहब ने हम बेटियों के जहेज के लिए बीबी रोजीना के पास अमानत तौर पर 8 लाख जमा करके रखे थे। जब मेरे वालिद ने बीबी रोजीना से अपने पैसे मांगे कि मैं अपनी एक बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ, तो बीबी ने सलार ब्रोही के साथ मिलकर हमारे ऊपर तशद्दुद कराकर झूठे केस करा दिए, जबकि पूरे अहले मोहल्ला को पता है कि बीबी रोजीना और सलार ब्रोही इनका एक लैंड ग्रेबर और गुंडा ग्रुप है। सलार ब्रोही हमें सरेआम मसले की नुमाइश करते हुए हमें मौत मार धमकियां दे रहे हैं। हमारा वालिद साहिब बेगुनाह है, जेल में है, हमें जान का खतरा है। हमारे वालिद साहिब के अलावा कोई नहीं है। मजीद सुनिए इन्हीं की जुबानी। जी नाज़रीन, अभी हम इस वक्त बैठे हैं, एक मज़लूम फैमिली है जिनके हक़ को गस्ब किया गया, जिनके हक़ को दबाया गया, और इनका वालिद है, घर का एक वाहिद कफ़ील है जिसकी ये 3 बच्चियां हैं और ये 2 छोटे मासूम बेटे हैं उसके, जिसका नाम है सिंगार अली चांडियो, वलद हुजूर बख्श चांडियो। अब हम इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या बीती, क्या हुआ। ये बच्चियां खुद, ये बेटियां खुद बताएंगी इनके साथ क्या हुआ। ये भी बेटी आप बताएं कि आपका वालिद साहब कहाँ, किसके पास काम कर रहा था, आज अगर जो बेजुर्म ज़िंदान में है, जेल में है, उसके असबाब क्या हैं, ये बताएं। जी, मेरे अब्बू जो है, वालिद साहब जो हैं, बीबी रोजीना शाह के पास काम करते थे। मैं भी बीबी रोजीना शाह के पास काम करती थी। मेरे अब्बू ड्राइवरी करते थे, मैं उनके घर में अंदर काम करती थी। मेरी छोटी बहन शहजादी है, वो भी उनके पास काम करती थी बिना पैसे। मेरे अब्बू को सिर्फ वो सैलरी रहती थी और मैं उनकी ऐसे ही खिदमत करती थी सादात समझ कर। और मेरे अब्बू ने कुछ टाइम पहले, तकरीबन 1.5-2 साल पहले 8 लाख रुपए कुछ हमारे गांव में प्लाट्स थे, वो बेच के रखे कि बेटियों की शादी करूंगा, जहेज के लिए मुझे काम आएंगे। तो मेरे अब्बू ने 3 से 4 महीने पहले पैसों का जिक्र किया और बीबी को बोला कि आप मुझे रब्बिल अव्वल में पैसे कर दीजिएगा कि मैं एक बेटी का फ़र्ज़ अदा कर सकूं। मगर जब पैसों की बात आई, बीबी ने बोला कल परसों तारीखें देती रही, और जब तारीखें दे दे के थक चुकी थी वो, तो मेरे अब्बू ने बोला कि अब तो आप मुझे दे दें। तो उन्होंने आगे से धमकियां दी, गाली गलौज भी की रोजीना शाह ने, और पैसे ना देने के धमकियां हमें दी गई और अपने गुंडे सलार को बुलाया, जो इनके घर में ना कोई किराएदार है
ना कोई और है। सालार हुसैन बिरोई एक इनका पाला हुआ गुंडा है और उसने धमकियां भी दी और हमारे साथ लड़ा भी, तशद्दुद भी किया। मेरे अब्बू के ऊपर हम दोनों बहनों को मारा, कूटा और हमारे अब्बू को 2 घंटे के लिए उन्होंने बंद भी कर लिया कमरे में कि आप 15 पे कॉल करोगी या किसी भी अपने को बुलाओगी तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। फिर उन्होंने क्लाशन की बैक साइड भी मेरे अब्बू के सर पे मारी और हमें कहा कि फ़ौरन से ये घर खाली करो वरना आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अभी भी मैं कंपनी जाती हूँ, मिल एरिया में काम कर रही हूँ, अपनी बहन के साथ जाती हूँ। सैयद शेरशाह और सालार हुसैन बिरोई रास्ता पकड़ के बार बार मुझे यही कहते हैं कि आप लोगों के कोई बड़े भाई नहीं है, आपका एक अब्बू है जिसके ऊपर हमने झूठी FIR करवाई है, झूठी FIR की मद में वो जेल गया हुआ है, तो आप लोगों का कोई सहारा नहीं है। आप बेटियों को मार भी देंगे तो आपका कोई नहीं आएगा। तो ये धमकियां भी हमें मिली जा रही हैं और हर रोज़ आके ये मुझे डराते हैं और कहते हैं कि अपने बयान जो है वो किसी को नहीं देना, ना हकीकत बताना। और मेरी अपील है आप सबसे कि मुझे अपनी ये हक दिलाया जाए, मेरे अब्बू को रिहा करवाया जाए जो इन्होंने झूठी FIR करवाई है। जी अच्छा, इन्होंने ये कुछ तस्वीरें भी चलाई हैं सोशल मीडिया पे आप लोगों के खिलाफ? जी भाई, इन्होंने मेरा मोबाइल, NIC, पासपोर्ट और कुछ मेरे पास कमेटी के पैसे थे वो भी इन्होंने मुझसे जब्त कर लिए। जब ये मैंने पैसे मांगे अब्बू के साथ, हम दोनों बहनें गई उनके घर, अब्बू ने बोला आप पैसे नहीं दे रही तो ये मेरी 2 बच्चियां हैं, इनके वास्ते मुझे दे दो, बेटियां लाया हूँ, मेरा हक है आपके पास पड़ा हुआ, मुझे दे दें। मगर वो औरत नहीं मानी जो रोजीना शाह है और उसने हमारे ऊपर तशद्दुद भी किया और मुझसे अपनी चीज़ें भी छीन ली और मुझे ना देने के लिए उन्होंने यानी कि ये कम किया। ठीक है, अब आप क्या मुतालबा करते हो IGN से और बिलखुसूस हमारी जुडिशन से तो आपके साथ? मैं अब ये मुतालबा कर रही हूँ कि मेरे अब्बू बेगुनाह है, बेकसूर है। मेरे अब्बू ने कोई डकैती, कोई चोरी नहीं की। जो सालार हुसैन बिरोई है उसने झूठी FIR करवाई है मेरे वालिद साहब पे और जो सैयद शेरशाह है वो भी हमें धमकियाँ देता है रास्ते में मिल कर। और जो ये रोजीना शाह है खुद अपना आपको पीछे पे रखती है और 2 ये गुंडे इसने पाले हुए हैं। एक को कहती है कि ये एडवोकेट है, दूसरा कहती है कि तालीम याफ्ता है यानी कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। सर कोई यूनिवर्सिटी में ये पढ़ तो रहा है मगर ये गुंडागर्दी भी कर रहा है। कॉलोनी में आप जहाँ भी जाके पूछें ये सालार हुसैन बिरोई कितना बदतमीज़ है और इसने नाजायजियाँ बहुत की हैं मेरे साथ। और रोजीना शाह को जब मैंने बताया है तो वो कहती है बेटा कोई मसला नहीं और उससे आगे से कुछ नहीं बोलती। तो अभी मेरी बस वालों से यही अपील है कि मेरे अब्बू बेगुनाह उसे बाहर किया जाए और मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ वो कुछ तदारुक करें, इंसाफ करें और मेरे अपने अब्बू के पैसे जो हैं अमानत समझ के अब्बू ने इनको दिए हुए थे, ये सादात घराने की हैं, सादात है, मुझे पैसे वापस करेंगी। अब ये औरत हमें पैसे वापस नहीं कर रही, बीबी रोजीना शाह। खुदारा आप बस वाले उनको बोले कि हमें अपने पैसे भी वापस दिए जाएं और ये अपने जो इन्होंने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं वो भी ये वापस करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन डडियाल एडिशनल SHO थाना पुलिस डडियाल आसिफ अजीम की हमरा नफरी DFC नसीब चौधरी राजा अवैध साहिर एहतशाम दीगर एहलकारान के शानदार कार्रवाई। 1 साला मासूम बच्ची से जिनसी ज्यादती करने वाला मुलजिम अरसलान शफीक गिरफ्तार। मुलजिम से केस के मुतालिक तफ्तीश शुरू कर दी गई। अवाम इलाका की जानिब से डडियाल पुलिस की इस कार्रवाई का खैर मकदम किया गया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल महकमा सिविल डिफेंस के ज़ेर तमाम जामिया मुहम्मदी मस्जिद में सालाना दूसरी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। महफिल की सदारत डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर आसिम रियाज वाला ने की। साबिक CDO रियाज अहमद वाला के अलावा पीर सैयद शाहिद हुसैन कादरी, हज़रत इलामा गुलाम मुस्तफ़ा मुजतदी, इलामा शबीर अहमद कादरी, इलामा मोहम्मद गुलफाम अवैसी, कारी हमाद हारूनी ने महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में शिरकत की। मारूफ नात ख्वान मोहम्मद उस्मान ताहरी, अलहाज इमरान खालिद और कारी मोहम्मद नूर आलम रिजवी ने महफिल पाक में कलाम आला हजरत पेश करके महफिल पाक में रूहानी समा बांध कर हाज़रीन में बरकत पैदा कर दी। इलामा गुलाम मुस्तफ़ा मुजतदी, कारी मोहम्मद शबीर कादरी और इलामा गुलफाम अवैसी ने महफिल पाक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर
मुफस्सिल रोशनी डाली। डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर आसिम रियाज वाला ने इस मौका पर इस्तकबालिया खिताब करते हुए कहा है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही असल ईमान है और इनकी सीरत मुबारक हमारे लिए मशले राह है जिस पर हम अमल पैरा होकर दुनिया आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रूहानी महफिल के इनेकाद से दिलों को सुकून मिलता है और इंशाअल्लाह ताला ऐसी रूहानी महफिलों के इनेकाद का सिलसिला जारी रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं पख्तूनख्वा से। KPK ब्यूरो चीफ शाहिद जमान शज़ई के मुताबिक पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान महाजरीन का रज़ाकाराना तौर पर इनखला जारी है। पाक अफगान बॉर्डर तुरखम पर हज़ारों की तादाद में अफगान महाजरीन का रश लगा हुआ है जो कि रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर बदबख्त बेटे ने बूढ़ी माँ को तशद्दुद को निशाना बना डाला। नाफरमान बहू ने बच्चों समेत इस शर्मनाक अमल में खावन का साथ दिया। ये 3 बेटियां अपनी माँ को इंसाफ दिलवाने थाना सिटी पहुंच गई। लियाकतपुर चक 1982 में बदबख्त बेटे गुलाम मुस्तफ़ा कौम राजपूत भट्टी ने अहलिया आबिदा परवीन और 2 बच्चियों समेत बूढ़ी बेवा माँ सफिया बीबी को डंडों के साथ तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून की ये 3 बेटियों ने जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल करने के बाद मुतलका थाना सिटी में तहरीरी दरख्वास्त दर्ज करवाते SHO से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। खिपरू से हमारे रिपोर्टर हाजी जाफर बोसाल की रिपोर्ट के मुताबिक खिपरू के करीब कहाई थाने के हदूद में 5 दिन पहले बासरून ने डंडे के जोर पर शादीशुदा औरत को बास अगवा करके बुरसा कहाई थाने दाद ले गए। कहाई पुलिस ने एक भी नहीं सुनी। बुरसा लिहाजा नूर खास खेली, मोहम्मद अर्स खास खेली, औरतें शरीफान खैरान और दीगर ने मीरपुर खास रोड ब्लॉक करके खिपरू नहर के ब्रिज पर एहतजाजी मुजाहरा किया जिसके बाद दोनों साइडों की गाड़ियां बंद। रोड ब्लॉक होने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गई। बुरसा ने ऑन न्यूज़ को बताया कि बासर 5 दिन पहले हमारे घर में घुसकर हमारी शादीशुदा औरत हसीना जोजा अलहदीनू खास खेली को बास डंडे के जोर पर अगवा करके हम ऐसी दाद खाई थाने पर ले गए। हमारी खाई पुलिस ने एक भी नहीं सुनी। हम किसके आगे इंसाफ के लिए जाएं? हम गरीबों की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने बासरून के खिलाफ इल्ज़ाम लगाते कहा कि रात देर से फिर हमारे घरों में घुसकर हमारे ऊपर असले के जोर पर हमला किया। हमले में गोली लगने पर काम्बू वल्द उभायू खास खली सख्त जख्मी हो गई जिसको इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया जहां पर इलाज जारी है। उन्होंने IG सिंध, DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SSP सांगर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि हमारी बच्ची को बासरून से बाजियाब कराया जाए, हमसे इंसाफ किया जाए। दूसरी जानब DSP खिपरू एहतजाज करने वालों के पास पहुँच गए, इनसे बातचीत करके रोड खुलवाया गया। बाडू से हमारे नुमाइंदा गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक पाक सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन की डिवीज़न सदर सखर गुल मोहम्मद जतोई के हुक्म पर ज़िले खोटकी की क़यादत की जानिब से रवानती में इजलास हुआ जिसमें मंशियात की लत और दीगर समाजी बुराइयों की रोकथाम के लिए अहम फैसले किए गए। पाक सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन की ज़िले क़यादत की जानिब से रवानती में इजलास हुआ जिसका एजेंडा समाजी बुराइयों की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम करना था। इजलास ज़िले सदर लुत्फ़ुल्लाह रंद की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ जिसमें राय से फैसला किया गया कि जुए की जगह रंगपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म रोंती ढोवेस्टी जीवन शाह और क्रिकेट मैचों पर रोजाना लाखों रुपए का जुआ खेला जा रहा था और मुर्गियों परिंदों के साथ बदतमीजी की जा रही थी। लेकिन हमारी इंतजामिया ने हमें आगाह किया कि हालांकि वो बेखबर है। हम अपने हेड ऑफिस को खत लिखेंगे। अपने इलाके से समाजी बुराइयों के खात्मे और नौजवान नस्ल को बचाने के लिए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। फूलनगर सब डिवीज़न चेयरमैन हाइड्रो मुश्ताक भट्टी एंड ब्रादरान हर साल की तरह महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल करवाते हैं। इस बार भी महफिल में ज़िक्र अहले बैत डॉक्टर मुजाहिद ने बयान की। फूलनगर डॉक्टर मुजाहिद ने सालाना महफिल में अहले बैत बयान की और कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि अल्लाह तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों के तुमसे हर नापाकी को दूर फरमा दें और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दें। फिर कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर में फातिमा, अली, हसन और हुसैन हम सब दाखिल कर फिर कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर में फातिमा, अली, हसन और हुसैन हम सब दाखिल करके कहा कि ये मेरे अहले बैत हैं। इस मौका पर मुफ्ती ज़ियाल हसनैन सिद्दीकी, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान के फर्जंद राना शहजाद इकबाल खान, अंजुमन ताजान के सदर खालिद जावेद, मलिक उस्मान, अशरफ कशिफ और दीगर ने शिरकत की। महफिल में हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। महफिल में सैयद महमूद रिजवी ने दुआ कराई और आने वाले मेहमानों का पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया गया।
खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक आज यूनिवर्सिटी दो तहरीक का बार एसोसिएशन जैकबाबाद में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट मुजफ्फर अली रंद, एडवोकेट एजाज अली शाह, एडवोकेट असहार मलगानी और तमाम वकला बरादरान ने शिरकत। शुरका का हुकूमत ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत ऑफ सिंध से एक ही अपील। जैकबाबाद को बार एसोसिएशन के सदर मुजफ्फर रंद ने कहा है कि ये जैकबाबाद की 12 लाख पॉपुलेशन के साथ जुल्म जो यहाँ एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। उन्होंने कहा कि हम आला अहदेदारों के बार एसोसिएशन की जानिब से नोटिस भेजेंगे कि जैकबाबाद यूनिवर्सिटी 2 प्रोग्राम में ताज वेलफेयर एसोसिएशन के अहमद नवाज रंद, नौजवान कटबार इत्तेहाद चेयरमैन जैनुल आबिदीन कटबार, पनहोर वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मद हनीफ पनहोर ने भी शिरकत की। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 साल से चलने वाला कत्ल का झगड़ा साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब उम्मीदवार पीपी हल्का 291 कोट छुट्टा में मीर मोहम्मद मिर्ज़ा खान तालपुर की सरबराही में मौससीन इलाका ने ख़त्म करा के सुलह करा दी। सुलह के बाद इलाका में जो खौफ की फिजा कायम थी वो ख़त्म हो गई। तफसील के मुताबिक रुस्तमानी बरादरी में कारोकारी के शक व शुबा में झगड़ा हुआ जिसमें एक बुजुर्ग कत्ल हो गया था। दोनों फरीक आपस में करीबी रिश्तेदार थे। मुद्दई ने मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज करा दी, मगर पुलिस की सुस्त रवि से मुलजमान कानून के शिकंजे में ना फंस सके। मगर सुलह पसंद नासिर मीर मोहम्मद मिर्ज़ा खान तालपुर, कोड़ा खान रुस्तमानी, जुमा खान जोगियानी और दीगर मौससीन की काविशों से सुलह की तारीख मुकर्रर की गई। मुकर्रर तारीख वाले दिन अवामी इज्तिमा में दोनों तरफ सालिस मुंतखब किए गए, जिन्होंने आपस की मुशावरत के बाद मुलजमान पर 25 बघे और 28 लाख रुपए रकम क़िसास के तौर पर तय की, जिस पर दोनों फरीकीन ने मनान तस्लीम करते हुए मौससीन का फैसला कबूल किया और बाद फैसले के दुआए खैर कराई के सालसीन में मुदई पार्टी की तरफ से सरदार अता, मोहम्मद खान तालपुर, अब्दुल गफूर खान तालपुर, मोहम्मद अफजल खान सनानी, नूर मोहम्मद खान चांडिया और मुलजमान की जानिब से दोस्त मोहम्मद तालपुर, जुमा खान जोगियानी, हाफिज गुलाम यासीन हानवी और गुलन खान जोगियानी शामिल थे। सुलह होने के बाद अहले इलाका ने दोनों फरीकीन को मुबारकबाद दी और इस फैसले को सराहा। रुख करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कोट छुट्टा की हदूद में जॉइंट पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। जॉइंट में कमी लाने के लिए गश्त का दायरा कार वसी कर दिया गया है। जुए के अड्डों मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। SHO थाना कोट छुट्टा अली इमरान का कहना है कि शहरियों को इंसाफ की फराहमी करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे और हम वक्त अवाम की खिदमत के लिए दस्तयाब हैं। किसी को कानून शिकनी की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। शहरियों के ताउन से जॉइंट पेशा नासिर का किला कुमा किया जाएगा। ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के ज़रिए तमाम फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए इसराइल के खिलाफ रैली निकाली गई। डिवीज़नल ब्यूरो चीफ हीर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की रैली HWO महाराजा रोड से निकाली गई, जबकि रैली के शुरा ने अल्लाह अकबर के फलक शिकाफ नारे लगाए। रैली में HWO के दीगर अहदेदारान और कारकुनात समेत कसीर तादाद में आम शहरियों ने भी शिरकत की। रैली के शुरा से चेयरमैन HWO शहजाद अकबर भट्ट एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल ने फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर रखी है और इसराइल शहरी आबादियों, हस्पतालों और इबादतगाहों पर मिसाइलों और जंगी जहाज़ों की बमबारी अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी मुसलमानों को शहीद कर दिया है, जबकि ज़ख्मियों तक तिब्बी इमदाद की रसाई तक नहीं दी जा रही और इसराइल एक मनसूबाबंदी के तहत फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कशी कर रहा है। दुनिया इसराइल की फ़लस्तीनी मुसलमानों पर किए गए मुसालिम पर मुसलसल खामोशी इख्तियार करके दोगलेपन का मुजाहरा कर रही है, जबकि आलम इस्लाम को मुत्तहिद होकर दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द इसराइल के खिलाफ मैदान में आना होगा और फ़लस्तीनी मुसलमानों को इनका हक खुद रातियत देना होगा। पाकिस्तानी कौम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ी है और फ़लस्तीनियों से हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर है। इंशाअल्लाह जल्द इसराइल सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक थाना शाह लतीफ़ टाउन पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई, एक मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार। दौरान इंटेरोगेशन मुलजिम ने बहुत से मोटरसाइकिल चोरी करने का मान लिया।
हुजा शाह मुकीम में मौसम की तब्दीली के साथ ही कम आमदनी वाले शहरियों ने गर्म मलबूसात और शूज़ की खरीदारी के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया। महंगाई के सताई हुए अवाम का कहना है कि अगर मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की रेट कम हो रहे तो फिर इसके समरात गरीब अवाम तक क्यों नहीं पहुँच सके। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद हामिद भट्टी की ये रिपोर्ट। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर के जम्मा ऑफिसर सीनियर हेड मास्टर नज़ीर अहमद के चेयरमैन पंजाब सरदार ज़फरुल्लाह खान से एक अहम नशिस्त हुई। दौरान मुलाकात मोहम्मद सरवर चौहान एंकर भी हमरा थे। दौरान गुफ्तगू चेयरमैन ने इनकी सेहतयाबी के बारे में पूछा। मौसूफ कुछ अरसा कबल अरसाए क्लब में मुब्तला थे और पंजाब कार्डियोलॉजी लाहौर में उनका बाईपास ऑपरेशन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो दोबारा सेहतयाब होकर स्कूल अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो गए हैं। भावनगर के मुकामी स्कूलों में मैट्रिक के इम्तहानात में इनके तुलबा की अव्वल पोजीशन रही और तमाम तुलबा पास हो गए। दीगर उन्होंने बताया कि चेयरमैन पंजाब हमारे तुलबा हम निसाबी सरगर्मियों और अदबी प्रोग्रामों में भी भरपूर हिस्सा लेते हैं। टूर्नामेंट में हमने काफ़ी ट्रॉफियाँ इनामात जीते हैं और सर्टिफिकेट मिले हैं। मजीद बताया, मेरे आने के बाद स्कूल का माहौल बहुत बेहतर हो गया है। दफ्तर के सामने वाले ग्राउंड में उन्होंने खूबसूरत पौधे और घास लगाई है। तमाम स्कूल में SOPs पर मुकम्मल अमल किया जा रहा है। स्कूल के तमाम वॉशरूम साफ सुथरे हैं और पानी की दस्तयाबी और तदरीसी माहौल बहुत अच्छा है। साथ साथ बड़ी मेहनत लगन से तुलबा को तदरीस दे रहे हैं। दीगर सीनियर हेड मास्टर नज़ीर अहमद ने कहा है कि हमें तुलबा की तादाद की पेश नज़र नई बिल्डिंग और कमरों की अशद ज़रूरत है। डिप्टी कमिश्नर भावनगर और महकमा तालीम के अफसरान बाला से गुजारिश है नए कमरों और बिल्डिंग की तामीर के लिए बजट ग्रांट की मंजूरी दी जाए। नया चैनल से खबर शामिल करते हैं। रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक ने पंजाब पुलिस डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के ज़रिए तमाम स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौका पर इंस्पेक्टर महर सईद अहमद, OSI राना अतर इकबाल, रेडर सीर इमाम और दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। PO ने जिम खाना में मुनाकिदा पुलिस अफसरान और जवानों पर मुश्तमिल क्रिकेट टीमों के माबैन मुकाबला जात का आगाज़ शॉट लगाकर किया। इसी दौरान पुलिस जवानों पर मुश्तमिल टीमों के माबैन रस्साकशी के मुकाबला जात भी हुए। इसी दौरान पुलिस अफसरान और जवानों में जोशो खरोश पाया गया। DPO राना उमर फारूक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खानेवाल पुलिस जराए पेशा नासरी की सरखोबी और अमन को बरकरार रखने में पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ नुमाया खदमात सर अंजाम दे रही है और शब व रोज़ खानेवाल की अवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी निभा रही है। इसकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाना चाहिए। ताहम पुलिस अफसरान और जवानों की जिस्मानी और ज़हनी थकान को दूर करने और इनकी हौसला अफजाई के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया है, जिसमें क्रिकेट, रस्साकशी, बैडमिंटन, स्नूकर और वॉलीबॉल। खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा ज़िशान भोन की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज़ाबाद सदर मुस्लिम लीग नून हल्का PP कतर चौधरी शहजाद अली भट्टी ऑफ दोहटा अजमत ने कहा है कि कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर मुल्क की तकदीर बदल देंगे। तबाह हाल और ज़बोहाली का शिकार मुल्की माशत को पाँव पर खड़ा करेंगे और मुल्क एक बार फिर खुशहाली की राह पर गामज़न होगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने अपनी रिहाइशगाह डेरा मोज़ा दोहटा अजमत में मुलाकात के लिए आने वाले मुख्तलिफ अवामी वफूद से गुफ्तगू करते हुए किया। इनका मज़ीद कहना था कि मुल्क में इस वक्त वाहिद लीडर मियां नवाज शरीफ ही हैं जो इस कौम को महंगाई की दलदल से निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ को मन घड़त कहानी की बिना पर नाअहल करार दिया गया और बेबुनियाद मुकदमात में फंसाया गया। महकमा बरक़ियात डडियाल के मुलाजिम जुनेद शाह आज दौरान ड्यूटी पोल से गिरकर शदीद ज़ख्मी हो गए थे। ज़ख्मी को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डडियाल मुंतकिल किया गया, लेकिन हालत तशवीशनाक होने पर डॉक्टर्स ने एमरजेंसी की सूरत में DHQ मीरपुर रेफर कर दिया, जहां पर इनका इलाज मुआवजा जारी है और हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात थाना सिटी यजमान पुलिस की समाज दुश्मनासी के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, डकैती, नकबजनी और मवेशी चोरी में मुलव्वस गैंग का सरगना साथियों समेत गिरफ्तार। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास की ज़ेर कमान बहावलपुर पुलिस को कामयाबियाँ मिलने का सिलसिला जारी। SHO थाना सिटी यजमान ने स्पेशल टीम तश्कील देकर जदीद टेक्नोलॉजी और रवायती तरीक़ाकार का इस्तेमाल किया। डकैती, नकबजनी और सरकाम मवेशी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस बग्गा गैंग के 6 मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान में आफ्ताब अली उर्फ मलंग, शाहिद हुसैन, मोहम्मद शाहिद, इमरान, सजाद उर्फ मिठू और मोहम्मद नज़ीर उर्फ काला
मुलजमान के कब्जा से 6 लाख रुपए नकदी, 8 रास बकरियां, 2 रास गायें और 2 अदद मोटरसाइकिल कुल मादी 16 से 17 लाख रुपए बरामद। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद इंटरोगेशन जारी है और गैंग के दीगर साथियों की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रिकवर शुदा माल मसरूका और नकद रकम जरूरी कार्रवाई के बाद असल मालकान के हवाले की जा रही है। अवाम उन्नास की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज की जाएंगी। DPO सईद मोहम्मद अब्बास से मुलजमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स मेरा रबानी की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इंसदाद डेंगू के हवाले से किए गए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर यस्मान मुजाहिद अब्बास, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़िशान रौफ, DHO डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खालिद चन्नर, DHO डॉक्टर खालिद अराई, AMS बहावल विक्टोरिया सत्तार डॉक्टर एजाज रसूल, डिप्टी डायरेक्टर तालुकात आमा बहावलपुर आबिद हसन रिजवी, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मियाँ अजहर जावेद, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस तस्लीम आलम, एंटामोलॉजिस्ट, मुतल्लिका महकमों के अफसरान और फोकल पर्सन मौजूद थे। जबकि वीडियो लिंक के जरिए मुतल्लिका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी इजलास में शरीक हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ने कहा है कि इंसदाद डेंगू की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। नेज़ एंड्रॉयड यूज़र सरगर्मियों में मज़ीद बेहतरी लाई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी जगह पानी ना ठहरने दिया जाए और डेंगू लार्वा की सर्विलेंस मौसर तरीके से की जाए। उन्होंने कहा कि इंसदाद डेंगू के लिए तश्कील दी गई इंडोर और आउटडोर टीमों के अरकान फील्ड में फ़ाल अंदाज में काम करें और ज़िला भर में डेंगू लार्वा की अफज़ाइश के हवाले से हॉटस्पॉट्स की कवरेज को 100% यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इंसदाद डेंगू के हवाले से मुतल्लिका अफसरान और फोकल पर्सन की इंफरादी कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया।